Hello everyone, good morning. So today I am going to tell you about the major changes which occur in the syllabus of 9th and 10th CBSE, especially in the subject of English. So this is new for the student of class 9 and the student of class 10th already know everything, but there are major changes which is important to tell you, and so that you can start your preparation according to this syllabus. So as you all know that the question paper of English is used to divide into 3 sections, which section A which contains 2 paragraphs, that means कि इसमें 2 पैराग्राफ आते हैं जिसमें कि आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, रीडिंग स्किल आपकी पता की जाती है और उस रीडिंग स्किल में 2 पैसेज दिए जाते हैं जिससे कि आपको उसको पढ़ के और उसके आंसर्स करने होते थे. तो पहले ये क्वेश्चंस जो होते थे वो सब्जेक्टिव बेस होते थे, दैट मीन्स कि आपको पढ़ना होता था एंड उसका आंसर लिखना होता था. नाउ दे चेंज्ड इट एंड द सेक्शन ए द पैसेजेस विल इंक्लूड MCQs, दैट मीन्स कि अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे केवल. ओके, सो section A, which is reading skill, the weightage of this section is for 20 marks. So there will be 2 paragraphs and one will be of 12 marks and one of 8 marks. Okay, then section B, the name of section B is writing and grammar. So in this section they'll check your writing skill and grammar. So the major changes are occurred in this section. So it comprises of 30 marks first. So in this section the question number 3, the earlier it was of formal letters only on placing order, complaint letter and inquiry and letter to editor, but now it is completely changed and अब ये आएगा फॉर्मल लेटर ऑन एनी गिवन सिचुएशन. सो इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट. सो फर्दर इट वॉज जस्ट डिवाइडेड इनटू 4 sections, but now they will give you any random situation, any situation, and they'll ask you to write a formal letter on that. Second thing, the changes in marks. So they give more weightage to this question and now it is changed into 10 marks. Second thing, story writing. So as the student of class 10th already know that story writing, which is a question number 4 of 10 marks, and they give you a 2 lines and you have to write a story in about 200 to 250 words. But now this question is completely changed and now this is become more difficult even. So you need to practice more on your writing skills. So now the changes is analytical paragraph based on maps, charts, reports, line graph. So what does it mean? That the analytical paragraph, that means they'll give you a map or a chart, report or line graph and they'll ask you to write about that. So first मतलब thing is you need to see and analyze. आपको देखना है उसको, उस मैप को, उस चार्ट को, रिपोर्ट लाइन को समझना है, उस ग्राफ को, और आपके दिमाग में जो भी चीज़ आ रही है आप उसको एनालाइज करोगे और उसके बाद उस चीज़ पे लिखोगे. तो ये क्वेश्चन अब पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है. स्टोरी राइटिंग में स्टोरी बनाना काफ़ी इजी होता था, बट अब आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को, आपकी थिंकिंग को देखा जाएगा इसमें कि आप क्या सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, कैसे उसको एनालाइज कर रहे हो और कैसे उसको बहुत अच्छे ढंग से लिख रहे हो. मार्क्स का वेटेज इसमें सेम है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पहले हमेशा गैप फिलिंग ही होता था. गैप फिलिंग दैट मीन्स जिनको नहीं पता है, गैप फिलिंग होता था, लाइंस गैप छोड़ देते थे उसमें और उसमें आपको MCQs दिए जाते थे, ऑप्शंस दिए जाते थे और उसको फिलअप करना होता था. अब ये कम्प्लीटली चेंज हो गया और अब ये या तो क्लॉज पैसेज होगा या फिर ये गैप फिलिंग होगा या फिर एडिटिंग होगा. तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा गैप फिलिंग होता था, अब वो चेंज हो गया. अब वो क्लॉज पैसेज भी हो सकता है, गैप फिलिंग भी हो सकता है और एडिटिंग भी हो सकता है. तो क्लॉज पैसेज जिनको नहीं पता है तो वो गैप फिलिंग जैसा ही होता है, बस उसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग वर्ड्स दिए होते हैं और आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के उसको समझ के 4 ऑप्शंस में से एक जो
अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है उसको फिलअप करना होता है उसमें अकॉर्डिंग टू द स्टोरी और पैसेज. गैप फिलिंग इज सेम, दैट इज इट विल बी अबाउट प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस एंड अबाउट दीज टॉपिक्स. तो गैप फिलिंग में प्रीपोजिशन वगैरह यही सारी चीज़ें आती हैं. एडिटिंग 10th क्लास के बच्चों को पता है, 9th के बच्चों को नहीं पता है तो वो मैं बता देती हूँ. एडिटिंग में आपको एक पैसेज दिया जाता था, उस पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे जो कि गलत होते थे और आपको उसको सही करना होता. दैट मीन्स एडिट मीन्स चेंज, यू नीड टू चेंज दैट. ये क्वेश्चन पहले कंपलसरी होता था, अब ये कंपलसरी नहीं है. अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में इन तीनों ऑप्शंस में से आएगा. दैट मीन्स कि या तो वो क्लोज पैसेज पूछेंगे, या वो गैप फिलिंग पूछेंगे, या फिर वो एडिटिंग भी पूछ सकते हैं. तो अब आपको इन तीनों चीज़ को प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पहले या तो एडिटिंग हुआ करता था या फिर ओमिशन हुआ करता था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है और अब ये आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी, रिपोर्ट करना होगा डायलॉग को ऑन गिवन क्लूज. सो इसमें क्या होगा कि कोई सिचुएशन दी होगी आपको और उसके बेसिस पर आपको अपनी तरफ से ऐड ऑन करके डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे. तो आपको क्यूज़ देंगे, हिंट देंगे और उस हिंट के बेसिस पर आपको डायलॉग लिखना होगा. ये भी बिल्कुल नया है. 10th क्लास के बच्चों के लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट 9th वालों के लिए सही है क्योंकि अब उनको इसी पैटर्न पे पढ़ना है. सो it is good for them, but for 9th class it is about 1 year, so you can prepare it. Then we come on the section number 6, section C, which is language and literature, about 30 marks. There is only one change, which is in question number 7 or 9, I think. 1 out of 2 extract with 4 questions. So what does that mean? कि पहले आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाते थे. दैट मीन्स 2 पैराग्राफ दिए जाते थे पैसेज. वो प्रोज से भी हो सकते थे, वो पोइट्री से भी हो सकते थे, और उसके बेसिस पर आपसे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे. 4 मार्क्स के होते थे. अब इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है. अब इसमें क्या हो गया है कि अब इसमें 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे. वो तो सेम है, 2 पहले भी दिए जाते थे, 2 अभी भी दिए जाएंगे, वो चीज़ सेम है. लेकिन अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, बल्कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे. जो पहले 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते थे वो अब 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे. तो मार्क्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न में ये चेंज हो गया है. सो दीज आर द मेजर चेंजेस इन योर सब्जेक्ट विच रिक्वायर सो मच writing practice, and this is the best time so that you can improve your writing skill, your tenses, work on your vocabulary, because as you are seeing there are so many changes which you need to work on. So utilize the time. I'll provide you the lectures, introduction and vocabulary, and I'll give you the topic, and you have to submit your homework on the group. And yeah, thank you.